Recording. Good afternoon, my dear kids. This is Chetan sir. So today is the date 22/9/2020. Fine. Um, so ये जो है ना, this is session 1. चलो. Okay. So the first point we are going to make at the physical world. तो physical world जो chapter है बच्चों, हम इसका first point क्या करने वाले हैं? We are going to do the first point of physical world chapter is what is physics, है ना? Physics क्या है? What is physics? So it is the branch, है ना? क्या है ये? It is the branch of science that deals with the systematic study ठीक है? So it is the branch of science that deals with the systematic study of what? Of nature. And its natural phenomena. ठीक है? So this is one definition regarding physics. Physics क्या है? They have given one definition. Sir, we should write notes now only, or you will send it to group? My dear kids, listen up. I'm going to send this recording to the group, and I will give you printed notes when I complete this chapter. So you can make rather than notes, you can make points of this points. तो points कीजिए, points करके do one thing. When the classes will be overall classes means शाम तक. So then just you see the points and try to remember the concepts whatever I have written. तो उसको एक blank page में आप लिख के निकालिए. Are you getting my point, my dear kids? Points बनाइए, point करके बस उसको उसका जो elaboration होता है ना, pertaining to that, you have to write in the blank page. So that will help you to understand the subject. ठीक है? चलो. So basically what I'm saying that it is the branch of physics and the systematic study of nature and its natural phenomena. तो systematic study क्या होती है? What is systematic study? So systematic study is, first of all, you're going to observe the things. Things को आप क्या करते हो? Observe करते हो, है ना? Whatever the events are taking place means into the nature. Say for example, sun is there, it is emanating light and it is reaching to earth. So you peoples observe this कि light आ रहा है, एक distance से आ रहा है. Then after observing you try to analyze the things. ठीक है ना? क्या करते हो? Observation करने के बाद analyze करते हो. Analyze करने के बाद क्या होता है? Analyze करने के बाद आपके means you will be having so many questions that how this light energy is coming from the sun to earth, है ना? So many questioning attitudes आते हैं. Questioning attitude, ठीक है? तो इसमें क्या होता है? Questioning में क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने स्टार्ट करते हो आप क्वेश्चनिंग में. So with respect to that, you only analyze the answers. आप ही answers को find करते हो. And that answers will be in terms of what? Predictions. आपके predictions होते हैं वो answer. You don't know that answers will be correct or not. Okay. And for this, you used to conduct the experiment. तो ये predictions के लिए आप क्या करते हो? You used to conduct the experiment. The next step. Okay. So पहला step था आपका what? Observation. Then you used to analyze, और analyzing में क्या करते हो? You used to have the questioning attitude. So into that questioning attitude, you are making qualitative analysis as well as quantitative analysis.
So for that you're finding out the answers. So with this answers you're making your own predictions. तो आपके predictions बन रहे हैं, ठीक है ना? So this is called as predictions. Then you conduct the experiments. So according to that experiments you follow some procedure, and that procedures when you follow you'll have some uh, you know conclusion. Conclusion कहने से बेहतर है you will be having some readings, ठीक है ना? So readings, okay. So this readings will be, these are the conclusions of the experiments. And when you see these readings you will try to just compare these readings with the predictions you made it at the third point. तो उसको बोलते हैं वेरिफिकेशन, ठीक है ना? सो इसको क्या कहते हैं? वेरिफिकेशन. सो दिस इज द लास्ट प्रोसेस ऑफ द सिस्टमैटिक स्टडी, ठीक है? सो 6 पॉइंट्स यू मेड इन द सिस्टमैटिक स्टडी. पहला तो ऑब्जर्वेशन था, कोई भी सन का रे आ रहा है फ्रॉम द सन टू द अर्थ, देन यू एनालाइज दैट कैसे आ रहा है, इतनी एनर्जी कैसे मिल रही है फॉर द लाइट एनर्जी टू मूव फ्रॉम सन टू अर्थ, how it got energy. So you used to qualitatively analyze those things, quantitatively analyze those things. So after that you will make your own answers for that questioning attitude. आपका जो क्वेश्चन था आपने खुद पूछा था अपने मन से, and you will try to find out the answers. Okay, since समझ लो no physics will be there here. Physics subject नहीं है, science subject नहीं है, कुछ नहीं है, but you are making everything on your own. You are asking questions to your own by analyzing qualitatively and quantitatively, and you are finding out answers on your own. And उस आंसर से आप खुद प्रिडिक्शंस करते हो कि यार ये ऐसे आ रहा है because of having high energy, because of having that maximum amount of energy will be carried by the photons. तो उस वजह से हाई फ्रीक्वेंसी की वजह से it is getting propelled from sun to earth. So आप खुद predictions बना रहे हो, and after having predictions you will make some dummy things, dummy substructures of sun and earth, and you will have some particular distance, you will call it as 1 light year. ऐसा कुछ खुद का जो predictions बनाओगे तो एक experiment conduct करोगे. After that you will be having your own readings, ठीक है? And that readings and whatever you predicted, after completing of that experiment you will be having some reading, and when you compare those readings with the predictions, that process is called as verification. तो verification में अगर दोनों same आते हैं, so that is called as systematic study. तो systematic study of nature and natural phenomena means nature में कोई भी say for example you want to find out the diameter of the earth, ठीक है? diameter of the earth आप रोप लेके पूरा अर्थ नहीं घूम सकते, so you will be having always predictions, ठीक है? तो ये वाला systematic study वाला ये procedure follow up करते हो of the science. So you used to find the diameter of the earth in nature, or else say for example gravity का आप वैल्यू लेते हो, कितना लेते हो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सो दिस इज द प्रिडिक्शन, है ना? सो दिस इज प्रिडिक्टेड, राइट? तो इसको आप क्या करते हो? प्रैक्टिकल वैल्यू यू यूज टू फाइंड 9.8, सो विच इज नियरर, दोनों नियरर है. So this is theoretical value, this is practical value. So after coming to the conclusion you will come to know that yeah, by doing systematic study we are finding out the value of acceleration due to gravity. So this is what systematic study of the natural phenomena. This is what systematic study of the nature. So this is what is physics. इसी को physics कहते हैं, ठीक है? तो ये वाला आपका क्या हो गया बच्चों? This is the first definition of physics. चलो second page पे चलते हैं. Okay. So I'm going to make the second definition of physics. What second definition of physics? Physics. Again, what? It is the branch. It is the branch of science that deals with the systematic study. It is the branch of science that deals with the systematic study of what? Systematic study of
मैटर एंड एनर्जी, मैटर एंड एनर्जी एंड इट्स इंटर कन्वर्जन। ओके, तो बेसिकली ये है क्या बच्चों? इन स्मॉल टर्म्स आई कैन राइट एज E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। इसको क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड एज रिलेटिविटी टर्म, है ना? रिलेटिविटी का इंपॉर्टेंट टर्म है ये। फाइन, द होल इक्वेशन इज सेइंग दैट फिजिक्स इज समवॉट लाइक दिस। फिजिक्स कुछ ये है, ऐसे कुछ है। ओके, नाउ व्हाट इज E is equal to MC square? E is equal to MC square is relativity. सर रिलेटिविटी क्या है? सो रिलेटिविटी ये एक शॉर्ट टर्म है, इसका एक्सपांडेड टर्म क्या है? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। फाइन, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, बोथ आर वन एंड सेम। ठीक है, नाउ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है सर? व्हाट इज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी? सो व्हेन आई यूज्ड टू से दैट कि नेचुरल फिनोमिना, ठीक है, नेचुरल फिनोमिना, whatever types of phenomena are taking place into the universe, किसमें? यूनिवर्स, है ना? From the matter you are converting to energy, from the energy you are converting to matter and interconversion, ये सब बोल रहे हो, these are events, right? Natural phenomena या artificial phenomena कह लो। So whatever these are taking place in the universe, if there is presence, if there is presence of gravitation, if there is presence of gravitation इनसाइड एनी नेचुरल फिनोमिना, कोई भी नेचुरल घटना घट रही है, अगर उसमें ग्रेविटेशन वाला कंसेप्ट प्रेजेंट है, तो उसको कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? जनरल, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। क्या कहते हैं उसको? जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। सो द phenomena which are taking place where the presence of gravitation is there, so उस पे जो थ्योरी बनाया गया रहता है बाय द वेरियस साइंटिस्ट्स, तो उस थ्योरी को जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की कैटेगरी में फिट करते हैं। ओके, से फॉर एग्जांपल नेचुरल फिनोमिना इज टेकिंग प्लेस इफ, ये तो प्रेजेंस वाला फंडा हो गया, राइट? दिस इज प्रेजेंस वाला फंडा ऑफ ग्रेविटेशन। इफ देयर इज एब्सेंस ऑफ ग्रेविटेशन, if there is absence of gravitation where the natural phenomena are taking place, वहां पे gravitation का कोई concept ही नहीं है, it means that this theory is called as special theory of relativity। क्या बोलते हैं इसको? special theory of relativity। is that clear my dear kids? अरे यार, special theory of relativity। now when you are having, when you are making the connection in between these two categories of the branches, जब कोई आप रिलेशन बिल्डअप कर रहे हो, किसमें? जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, दैट इज कॉल्ड एज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इसको हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। एंड ये किसने एस्टेब्लिश किया था सर दोनों के बीच में रिलेशन को? इसको एस्टेब्लिश एल्बर्ट आइंस्टाइन ने किया था। ठीक है, तो उससे जो फॉर्मूला बना था, फॉर्मूला, तो फॉर्मूला कौन सा बना था? द फेमस फॉर्मूला E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। ठीक है, ये आपका बन गया फिजिक्स का सेकंड डेफिनेशन। नाउ द थर्ड डेफिनेशन क्या है? फिजिक्स का थर्ड डेफिनेशन क्या है? सो इट इज द, चलो यार हेडिंग तो लिख लेते हैं, फिर बाद में इट इज द किसका सर? इट इज द क्या है? व्हाट इज इट इज द सर? फिजिक्स का थर्ड डेफिनेशन। फाइन, या so it is the branch of science, it is the branch of science that deals, that deals with the, with the systematic study of, किसके बारे में?
ऑफ मोशन, ठीक है ना। हाँ, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ मोशन। तो कोई भी मोशन हो, है ना, तो कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर उसके मोशन के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं, और द पोजीशन ऑफ रेस्ट, है ना, तो उसको भी हम क्या कहते हैं, दैट स्कोप इज ऑल्सो कॉल्ड एज फिजिक्स कहते हैं, उसको भी हम क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। इज माई टर्म्स इज वेरी क्लियर माई डियर किड्स, क्या आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट है, आपने इसको पोजीशन 1 से लेके पोजीशन 2 को सेंड किया, there is an object you are sending from position 1 to position 2, so this is called as change in momentum, change in momentum। तो फाइनल मोमेंटम p2 है, ठीक है, फाइनल मोमेंटम p2 है, इनिशियल मोमेंटम क्या है, p1 है, ओके, सो p2 माइनस p1 इज dp। तो कितने टाइम में, चेंज इन टाइम में, dt, सो dp बाय dt, ठीक है, dp बाय dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। ये क्या है, दिस इज नथिंग बट न्यूटन्स सेकंड लॉ। ये क्या है, न्यूटन्स सेकंड लॉ है। कैसे सर, द रेट इसको क्या कहते हैं, dt को क्या कहते हैं, dt इज कॉल्ड एज द रेट मींस इट इज डिपिक्टिंग टाइम, टाइम चेंजिंग, इसको क्या कहते हैं, द रेट कहते हैं, ठीक है। द रेट मतलब पैसा नहीं फिर, ठीक है, कितना रेट का भाजी है, नॉट लाइक दैट, द रेट मींस टाइम चेंजिंग, द रेट ऑफ चेंज, ये डी क्या है, दिस डी इज नथिंग माय डियर किड्स, दिस इज कॉल्ड एज डी माने चेंज, क्योंकि डी यहाँ पे भी टी के साथ यूज कर रहे हैं, यहाँ भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, टाइम चेंजिंग बोला मैंने, क्यों बोला चेंजिंग, बिकॉज यहाँ पे भी डी है ना, सो डी टी को मैंने बोला द रेट मतलब टाइम चेंजिंग, with respect to time changing the change in momentum p क्या है, p is nothing but momentum है, क्या है, momentum, okay। what is f is nothing but applied force है, ठीक है, applied force है। अभी मैंने किसी चीज को धक्का दिया, फोर्स से पुश किया, सो आई हैव अप्लाइड फोर्स, सो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स मोमेंटम इज टेकिंग प्लेस। तो यहाँ पे जब फोर्स लगा तो मोमेंटम का डायरेक्शन किधर था, मोमेंटम का भी डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में है। सो अ टाइप ऑफ मोशन इज नथिंग बट हियर फोर्स है और मोमेंटम है, क्या है, और मोमेंटम है। सो टू टाइप्स ऑफ मोशंस आर हियर, एक तो फोर्स है, दूसरा मोमेंटम है ना। सो व्हाट वी आर डूइंग हियर, सिंपली बाय द न्यूटन सेकंड लॉ वी आर डिफाइनिंग द मोशन, हम मोशन को डिफाइन कर रहे हैं। तो इस पे इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है, फोर्स है। फोर्स क्या है, इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी, डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी इज मोमेंटम। तो यहां पे हम न्यूटन सेकंड लॉ को कैसे डिफाइन कर रहे हैं, न्यूटन सेकंड लॉ, है ना। सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ momentum, the rate of change of momentum is directly proportional directly proportional to the applied force, to the applied force, and it it means what, tell me, it माने क्या है, it means momentum, है ना, it means क्या है, momentum, and it takes place in the direction of फोर्स अप्लाइड, जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स को अप्लाई किया था उसी डायरेक्शन में क्या हो रहा है, मोमेंटम हो रहा है। क्या मेरी बात सही है बच्चों, इज दैट क्लियर, एनी कंफ्यूजन ओवर दिस। सो टू डिस्क्राइब दिस, दिस इज फिजिक्स,
क्या हमने इसको डिस्क्राइब किया कि मोशन क्या है, टाइप्स ऑफ मोशन कितने हैं? सो दिस इज व्हाट फिजिक्स। क्लियर? ओके, सो 3 डेफिनेशन से मैंने आपको फिजिक्स क्या है बता दिया। फाइन, सो वी विल मूव टू द फोर्थ। फोर्थ वन नहीं, बस 3 काफी है यार, बहुत ज्यादा हो गया, एक्सेस अमाउंट भी अच्छा नहीं रहता वैसे। ठीक है, तो यहाँ पे वी आर गोइंग टू गो फॉर द नेक्स्ट। क्या था आपका? आपका था ओके, स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। पहले तो हम लोग स्कोप देख लेते हैं, स्कोप में क्या क्या है, क्या क्या सीखने के लिए मिलेगा। ओके, सो यहाँ पे लिख लेते हैं, वी आर गोइंग टू मेक अ कॉलम ऑफ दैट, स्कोप ऑफ फिजिक्स क्या है, देन वी आर गोइंग टू इलेबोरेट दैट। ठीक है, ढंग से उसको, वो भी। सो स्कोप ऑफ फिजिक्स, सो बेसिकली स्कोप ऑफ फिजिक्स इज वेरी मच वास्ट। तो स्कोप ऑफ फिजिक्स क्या है? बहुत ही वास्ट है ना, मतलब द ब्रांच इज वेरी मच डेवलप्ड। तो इसमें आपको बहुत सारे कंटेंट मिलेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट आई एम गोइंग टू मेक ओवर द स्कोप ऑफ फिजिक्स, इट इज वास्ट। इट इज वास्ट मतलब क्या? फिजिक्स इज वास्ट एंड एंड इट कंटेन्स, इसके अंदर क्या है? इट कंटेन्स मैकेनिक्स ब्रांच, है ना? क्या है? मैकेनिक्स, देन इलेक्ट्रो डायनामिक्स, ओके, देन थर्मो डायनामिक्स, ओके, देन उसके बाद क्या है? चलो, अकॉस्टिक्स, फिर उसके बाद है आपका ऑप्टिक्स, फिर उसके बाद आता है आपका रिलेटिविटी, है ना? देन इट विल कम एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। तो in the boys sections they were saying that sir क्वांटम मैकेनिक्स भी ऐसा कुछ है सर। चलो, ये भी मैंने इसको ऐड कर लिया इसमें। तो मैंने फर्स्ट पॉइंट बनाया रिगार्डिंग द स्कोप ऑफ फिजिक्स। फाइन, सो माय डियर किड्स, लेट अस गो वन बाय वन। एक बार ये तो पता चल गया ना, ये तो सिंपल है, इट इज वास्ट। तो नीचे देखने के बाद ही पता चल रहा है कितना वास्ट है ना? सो वी आर टॉकिंग अबाउट मैकेनिक्स। पहला वाला पॉइंट जो बन रहा है, इट इज ऑल अबाउट मैकेनिक्स, है ना? मैकेनिक्स के बारे में बात करते हैं। सो व्हाट इज बेसिकली मैकेनिक्स? तो आपका जो मैकेनिक्स है, इट इज द ब्रांच, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स that deals that deals with the सिस्टमेटिक स्टडी। यार ये तो बोलना ही पड़ेगा आप लोगों को, सिस्टमेटिक स्टडी। इसको आप, इस टर्म को आपको कभी नहीं भूलना है। इज इट विजिबल माय डियर किड्स? ये देख लो आप, सिस्टमेटिक स्टडी यहाँ पे दिख रहा है आपको, सिस्टम स्टडी वाला टर्म क्लियरली विजिबल। इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ मोशन एंड रेस्ट। ओके, चलो, सो लिसन अप बच्चों। uh, तो फिजिक्स तो है ही, मैकेनिक्स है ना, फिजिक्स तो है ही, दैट डील्स विद द सिस्टमेटिक स्टडी, ये तो पता है सर। मोशन, अभी ये मोशन क्या है? मोशन में हम क्या क्या पढ़ाई करते हैं? व्हाट टाइप्स ऑफ मोशन? मोशन में आप लोग क्या करते हो? फोर्स के बारे में पढ़ाई करते हो, है ना? फिर बाद में एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ाई करते हो, राइट? मींस देन अगेन वेलोसिटी, देन स्पीड, तो फिर मोमेंटम एंड एक्स्ट्रा। ठीक है,
So moving of an object या displacement, why not? क्यों नहीं ले सकते आप लोग? That is also a type of motion. लेकिन distance मत बोलना अभी. सर आपने displacement लिया है तो distance के साथ क्यों डिफरेंस कर रहे हो सर? तो डिस्टेंस मोशन नहीं होता बच्चों, ठीक है? So you got my point, my dear kid. So basically whenever the object changes its position from initial point, ठीक है, initial point to final point, so that is called as what? Motion. So if we are studying this event, तो अगर हम ये event पढ़ रहे हैं, means we are studying about this event, so that is called as mechanics. That is called as mechanics. And that mechanics is nothing but again physics. So we are studying physics here. And say for example, if you're keeping an object over the uh, table and the weight is acting downward, तो weight तो downward act कर रहा है. So here I am applying the Newton's third law. Say for example Newton's third law को मैंने applicate किया यहाँ पे. So weight is nothing but it is action of force, Fa है. And the reaction force Fr is nothing but capital N, normal reaction, है ना? तो कहाँ पे लग रहा है? यहाँ पे लग रहा है. यहाँ पे weight है आपका, जिसको मैं कह रहा हूँ action of force, and Fr which is equals to normal reaction. Okay, so that is called as two quantities we are studying here. One is weight, another one is normal reaction. तो क्या लिखते हैं हम लोग? N is equals to mg. So we are studying this relation N is equals to mg when the position of this body is at rest. तो ये स्टडी को भी हम क्या कहते हैं? मैकेनिक्स कहते हैं, ठीक है? So this is what physics, my dear kids. क्या मेरी बात क्लियरली समझ में आई आपको? Okay, now we will move to the electrodynamics, है ना? तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स मूव होने से पहले सो वी आर गोइंग टू से यू मैकेनिक्स तो हमने पढ़ लिया कि यार कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है, if the object is at rest, that is also mechanics. If the object is at motion, that is also mechanics, but it is divided as a separate branch. When you are studying the object is at rest, that branch is called as statics. उसको हम क्या कहते हैं? स्टैटिक्स ब्रांच कहते हैं. And when you are studying about the object which are in motion, that branch is called as dynamics. क्या कहते हैं उसको? डायनामिक्स, है ना? तो क्या मेरी बात आपको क्लियरली समझ में आ रही है बच्चों? इज दैट क्लियर? स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स. तो ये जो डायनामिक्स है ना, इसमें बेसिकली क्या मिलता है? बेसिकली आपको मिलता है, यस सर इट्स क्लियर, ओके. बेसिकली यू आर गेटिंग डायनामिक्स. तो डायनामिक्स को फिर फर्दर पार्ट में काइनेमेटिक्स बोला जाता है एंड काइनेटिक्स, ठीक है? तो इसको हम डिटेल में बाद में स्टडी करते हैं. इतना बस मतलब इतना समझना जरूरी है. वी आर नॉट गोइंग टू गेट इन डिटेल, ठीक है? सो वी विल सी इट लेटर. तो आपको ये तो चीज पता चल गया कि मैकेनिक्स बेसिकली है क्या. नाउ वी आर गोइंग टू मेक द नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रो डायनामिक्स. इलेक्ट्रो डायनामिक्स, ठीक है? तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स को समझने से पहले डायनामिक्स को समझ लेते हैं. डायनामिक्स मींस द ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर हैविंग मोशन, है ना? सो डायनामिक्स मींस द ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर हैविंग मोशन, ठीक है? तो डायनामिक्स को फर्दर वी आर डिवाइडेड दैट काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स. तो बेसिकली मूव कर रहा है, एक में फोर्स का कॉज है, दूसरे में फोर्स का कॉज बता नहीं रहे हैं. तो दैट इज काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स. ओके, चलो वी आर गोइंग टू डिवाइड दिस वन. इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं. आई एम ब्रेकिंग द सिंगल टर्म इनटू टू टर्म्स. फाइन. सो दिस term is nothing but this is depicting the motion of something. तो यहाँ पे कुछ मोशन होने वाला है या मोशन हो रहा है किसी चीज का. कौन से चीज का? इलेक्ट्रो का. इलेक्ट्रो क्या है? इलेक्ट्रो इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक चार्जेस. इलेक्ट्रिक चार्जेस. सो इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं सर? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल. चार्ज क्या होता है? चलो इलेक्ट्रिक चार्जेस बोलने से पहले चार्ज क्या होता है देख लेते हैं. इट इज द प्रॉपर्टी
of any material by virtue of which it attracts opposite kind opposite kind and repels same kind, है ना? Fine. So my dear kids, now let me tell you one thing. अट्रैक्शन अट्रैक्शन होने के लिए अपोजिट काइंड होना जरूरी है. तो चार्ज का सिंबलाइज हम कैसे करते हैं? विद दीज टू. एक आपका प्लस होता है, दूसरा माइनस होता है. प्लस इज कॉल्ड एज पॉजिटिव चार्ज, minus is called as negative charge. Okay, so when the charges are kept at a distance of interaction means either force of repulsion होना चाहिए या force of attraction होना चाहिए. तो उस distance पे, influential distance पे अगर दो charges को रखा जाए, and imagine that if two charges are not having same nature, मतलब दोनों प्लस नहीं है ना दोनों माइनस है, both are having opposite nature, opposite kind, then there will be force of attraction will takes place. क्या होगा? Force of attraction will takes place. Yeah. Okay, listen up. So this is attraction will takes place in opposite kind. Say for example मैंने two charges लिए, both are kept at a distance of interaction and having same nature, पॉजिटिव पॉजिटिव, देयर विल बी फोर्स ऑफ रिपल्शन. क्या होगा? दोनों एक दूसरे से दूर चले जाएंगे. फोर्स ऑफ रिपल्शन, रिपल्स विल बी गोइंग टू टेक्स प्लेस. सर इफ इट इज माइनस एंड माइनस, देयर आल्सो व्हाट विल हैपन माय डियर किड्स? वहां पे भी क्या होगा? वहां पे भी फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा. इज दैट क्लियर? या. सो दिस इज व्हाट यू नो, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल. तो ये जो चार्ज है ना, अगर आप इसको इलेक्ट्रिसिटी देके चार्ज बनाओ, मींस व्हेन यू इलेक्ट्रीफाई सम बॉडी, आफ्टर दैट द बॉडी विल बिकम चार्ज बॉडी. सो चार्ज बॉडी विल बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव. तो बॉडी या तो पॉजिटिव हो सकती है या तो नेगेटिव हो सकती है. तो वो जो पॉजिटिव या नेगेटिव है ना, तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस, है ना? वो प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक चार्जेस. तो इलेक्ट्रिक चार्जेस टू टाइप्स होते हैं, एंड दैट इलेक्ट्रिक चार्जेस विल बी हैविंग, एक उसका छोटा टर्म होता है, दैट इज इलेक्ट्रो. एंड व्हेन यू यूज दिस इलेक्ट्रो टर्म विद द डायनामिक्स, यू आर टॉकिंग दैट इलेक्ट्रिक चार्जेस आर इन मोशन. क्या कह रहे हो आप? यू आर ट्राइंग टू से दैट इलेक्ट्रिक चार्जेस आर इन मोशन. तो वो इलेक्ट्रिक चार्ज या तो प्लस हो सकता है या तो माइनस हो सकता है. सो आइदर पॉजिटिव चार्जेस आर इन मोशन और नेगेटिव चार्जेस आर इन मोशन. ठीक है? तो उसके लिए आप क्या बनाते हो फिजिक्स में? फिजिक्स साइंटिस्ट्स, दे यूज्ड टू डिफाइन द इलेक्ट्रिक चार्जेस मूवमेंट इनटू द इलेक्ट्रिकल सर्किट्स. तो इलेक्ट्रिक सर्किट्स के लिए उन्होंने क्या बनाया कि टू एंड्स हैं, वन इज पॉजिटिव एंड एंड वन इज नेगेटिव एंड. पॉजिटिव एंड का जो टर्मिनल है ना, वो लंबा वाला बनाया. ठीक है? थोड़ा सा अच्छी तरह से कर लेते हैं इसको. उसको लंबा वाला बनाया. ठीक है? ऐसे the larger one is called as positive terminal and the smaller one is called as negative terminal. Means जो positive terminal पे plus मैंने दिखाया, it means that positive charges are standing at this point. तो यहाँ पे अगर negative point दिखा रहा हूं मैं, माइनस दिखा रहा हूं, it means there will be less number of positive charges, क्योंकि ज्यादा संख्या में क्या है? नेगेटिव चार्जेस है. अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे कम संख्या में क्या होंगे? नेगेटिव चार्जेस. ठीक है? सो दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल सर्किट. इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल सर्किट बोलते हैं, है ना? तो इस इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या बोला जाता है? देयर विल बी इन द ओल्डन डेज, देयर विल बी, फाइन, सॉरी. सो दिस इज इलेक्ट्रिकल सर्किट्स. इलेक्ट्रिकल सर्किट, ठीक है? ये आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट है. एंड you know what, in the olden days scientists were showing the two types of current due to two electric charges. टू इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से दो तरह के करंट होते हैं. इट वाज द प्रिडिक्शन. सो पहला वाला दे यूज्ड टू थिंक दैट पॉजिटिव करंट. तो पॉजिटिव करंट क्या होता है सर? सो दिस पॉजिटिव करंट
is treated as when the plug key is closed. Plug key closed मतलब बटन ऑन करना. अगर ऐसे ओपन है, दिस इज कॉल्ड एज ऑफ. ऑन बटन मींस यू शुड क्लोज द प्लग की. इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है प्लग की. ठीक है. तो फिर सर ये भी प्लग की है? यस माय डियर किड्स. अगर आपने डॉट लगा दिया, सो दिस प्लग की इज क्लोज्ड. मींस क्लोज्ड माने on, you're making button on. This is open because no dot will be there. Okay, so positive charges will flow from positive end to negative end. ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस बहुत ज्यादा हैं, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट को जब रीच करेंगे, देयर विल बी अ फ्लो ऑफ करंट. तो इस डायरेक्शन को क्या बोला गया उन्होंने? इट इज कॉल्ड एज द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट. दैट कन्वेंशनल करंट इज नथिंग बट पॉजिटिव करंट, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक करंट. तो पहले पॉजिटिव चार्जेस फ्लो करते हैं ऐसा माना जाता था. ठीक है, बट एक्चुअली पॉजिटिव चार्जेस विल नॉट मूव, it will be at rest. Try to understand my point. Positive charges will not move because of its heavier mass. तो कंपेयर किया तो इलेक्ट्रॉन्स के जो नेगेटिव चार्जेस के जो मास होता है ना, that will be smaller. So that is why the current जो कुछ after these scientists who said that conventional current always flows from positive end to negative end, that theory is wrong. It was said by the modern scientists. They said that the direction of electric current is from negative end to positive end, and this current they called it as electronic current. इसको बोला गया electronic current, where negative charges flows from negative end to positive end after starting, after closing the key or after starting the button of electrical circuit. ठीक है, सो इसको बोला गया इलेक्ट्रॉनिक करंट. तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक करंट है ना, ये क्या था? द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. क्या था ये? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना. सो द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज गिविंग राइज टू इलेक्ट्रिक करंट. क्या मेरी बात आपको क्लियरली समझ में आई? आफ्टर डूइंग मॉडिफिकेशन इन द concept of electronic current, when they said that there is a rate of change of flow of electrons in the circuit is called as electric current. तो इसी को इलेक्ट्रिक करंट बोला गया, जिसको सिंबलाइज हम कैसे करते हैं? विद द कैपिटल आई. सो कैपिटल आई इज नथिंग बट dq by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो ये चार्जेस कौन से टाइप होते हैं? That is electrons type. So electrons will be in motion. So electrons will always it does motion, it moves, it won't stop anywhere. तो उसका मोमेंट चलता ही रहता है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द हो या कहीं से वन एटम से दूसरे एटम पे हो. सो इलेक्ट्रॉन्स विल बी इन मोशन, नॉट पॉजिटिव चार्जेस. ठीक है ना, बिकॉज इट विल स्टे एट द न्यूक्लियस. तो ये वाला कंसेप्ट था इन द ओल्डन डेज. सो वी सॉ टू टाइप्स ऑफ करंट. वन इज कन्वेंशनल करंट, अंदर वन इज इलेक्ट्रॉनिक करंट. सो कन्वेंशनल करंट में भी फ्लो करता था और इलेक्ट्रॉनिक करंट में भी फ्लो करता था, बट कन्वेंशनल करंट में पॉजिटिव चार्जेस विल बी फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव एंड टू नेगेटिव एंड. इन द इलेक्ट्रॉनिक करंट नेगेटिव चार्जेस विल बी फ्लोइंग फ्रॉम नेगेटिव एंड टू पॉजिटिव एंड. सर कौन सा वाला फ्लो करता था? पॉजिटिव चार्जेस? नो माय डियर किड्स. By the nature, positive charge will stay at the single place. It will not move from one point to another point. But negative charges will move from one point to another point. It will travel the distance. So that is why that current is called as electronic current. After modification of this term, that becomes electric current. ठीक है ना. तो इलेक्ट्रिक करंट को जब आप स्टडी करते हो, this branch is called as electrodynamics. इलेक्ट्रोडायनामिक्स, इसको क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोडायनामिक्स. नाउ से फॉर एग्जांपल सर, पॉजिटिव चार्जेस आर एट रेस्ट. सो इफ यू आर स्टडीइंग द चार्जेस एट रेस्ट, क्या इससे करंट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है सर? इससे इलेक्ट्रिक शॉक मिलता है? जैसे इलेक्ट्रिक करंट से इलेक्ट्रिक शॉक मिलता है ना सर. We are getting electric shock whenever we are putting our finger into the plug.
ऑफ द प्लग पिन वाला प्लग होता है ना, उसमें आपने फिंगर अंदर डाला तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक मिला, फाइन। एंड दैट शॉक इज ड्यू टू अल्टरनेटिंग करंट, क्योंकि वहां पे फ्लक्चुएट होते रहता है सिग्नल्स बहुत ज्यादा तरीके से, एंड इट विल बी इन मोशन। एंड पॉजिटिव चार्जेस आर एट रेस्ट। ये कहाँ का करंट है सर? क्या इसमें इलेक्ट्रिक शॉक मिलता है? यस माय डियर किड्स, इसमें इलेक्ट्रिक शॉक कहाँ पे मिलता है? यू नो, आई थिंक यू पीपल्स हैव प्लेड, यू पीपल्स हैव, ओके नो इश्यू मैन, यू पीपल्स हैव प्लेड, एक गेम खेला होगा आप लोगों ने, यू पीपल्स हैव सैट ऑन द चेयर, चेयर पे आपने बैठा होगा, चेयर पे बैठने के बाद पीछे जो है ना टवलिया, with the cloth you are hitting to the chair. After hitting for long time, if you keep your legs on the earth surface, देखो कितना अच्छा करंट लगता है आपको। कितने लोगों को लगा है? टेल मी। रिकॉर्डिंग अनीता, आई एम रिकॉर्डिंग, डोंट वरी। लगा है करंट? किसको लगा है? किसको लगा? फट से मेक रिस्पॉन्स क्विक। रंजीता नायक, ओके वेरी नाइस, ओके यस सर। रक्षिता कांबळे, you did that, fine. This incident I am discussing, this is called as electric shock got by when the charges are at rest। मतलब पॉजिटिव चार्जेस भी इलेक्ट्रिक शॉक को क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। ये एक आपका एग्जांपल हो गया। एंड ड्यू टू दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक और ड्यू टू दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, you can even attract the object. For example, I think you all played the plastic scale and paper bits game। आप बेंच पे पेपर बिट्स को फाड़ा, फेंका, और प्लास्टिक के स्केल को क्या किया? अपने हेयर्स के साथ फ्रिक्शन किया। सो यू टुक दैट स्केल टुवर्ड्स द पेपर बिट्स, तो पेपर बिट्स तो नाचने लगे सर। इट अट्रैक्टेड। तो मैं क्या करता हूं? आई विल टेक अ पेपर सिंगल बिट एंड आई विल टेक द स्केल। तो स्केल लेता हूं, स्केल लेके आपको क्या करने की कोशिश करता हूं, क्या अट्रैक्ट होगा या नहीं होगा? वी आर गोइंग टू सी दैट, ठीक है? चलो, सो दिस इज, हाँ, सो दिस इज प्लास्टिक स्केल। ये क्या है? प्लास्टिक स्केल है। तो प्लास्टिक स्केल को मैंने क्या किया? सुटेबल मटेरियल से रब किया। सुटेबल मटेरियल, फॉर एग्जांपल हेयर, तो हेयर से आपने क्या किया? इसको रब किया। तो इसमें जो एटम्स होते हैं, इट विल बी कैरिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इनटू पेयर। ऐसा पेयर्स में होते हैं। कैसे होते हैं? इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स। मींस दिस प्लास्टिक स्केल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है बच्चों? बिफोर rubbing with the hair, this plastic scale is electrically neutral because it is having pairs of positive and negative charges, है ना? तो इसको हम बोलेंगे electrically neutral, okay? But when you rub with your hair, this plastic scale becomes electrically imbalance। electrically imbalance, electrically imbalance क्या होता है सर? मैंने आपको कहा था पॉजिटिव चार्जेस विल नॉट मूव, इट विल नॉट मेक मोशन। तो इसको डिस्टर्ब करने के बाद इसमें से कौन से चीज जंप करेंगे? बताओ मुझे। विच थिंग्स विल बी गोइंग टू गेट जंप? कैन आई से इलेक्ट्रॉन्स? इलेक्ट्रॉन्स जंप करेंगे बाय द एक्सटर्नल ऑर्बिट, आउटर ऑर्बिट से, बिकॉज दोज आर एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स, तो वो लोग जंप कर जाएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट माय डियर किड्स? क्या आपको मेरी बात क्लियरली समझ में आ रही है? तो यहां पे क्या हुआ? यहां पे हुआ सर, electrons have jumped to hairs, yeah, now this became electrically positively charged body। क्या हो गई ये? positively charged body। which one? plastic scale sir, है ना? so positively charged body, when it brings near to the what? electrically neutral paper bit, तो इसमें जो जोड़ी रहेगी पॉजिटिव और नेगेटिव की, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स बैठे रहेंगे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, वो जंप करेंगे, वो जंप करेंगे। सो दैट व्हेन इट विल ट्राई टू जंप, तो पेपर भी उसके साथ जंप करेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है?
So this is called as force of attraction due to what? Static electricity produced on the plastic scale. तो प्लास्टिक स्केल पे जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई है, ड्यू टू दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज टेकिंग प्लेस बिटवीन प्लास्टिक स्केल एंड पेपर बिट. क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो पेपर बिट में है वो जंप कर रहे हैं किधर? पॉजिटिव चार्जेस की तरफ. ये ठीक वैसे ही है, समझो कि एक गरीब पति है, गरीब पत्नी है, और ये रिच बंदा है. गरीब पत्नी बहुत ही लालची होती है एंड शी विल जंप टुवर्ड्स द रिच पति. ऐसे इस बंदे को छोड़ के वहां पे चली जाना. ठीक है, जिसको मॉडर्न टर्म में बोलते हैं गोल्ड डिगर्स. ठीक है. एनीहाउ, मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाह रहा हूं. सिंपली टू एक्सप्लेन दिस कंसेप्ट आई यूज दिस, कहते हैं ना, आइडिया ऑफ गोल्ड डिगर्स. ओके, तो क्या मैं क्लियरली आपको समझा पाया कि ये क्या है? मींस वी आर स्टडीइंग हियर पॉजिटिव चार्जेस आर एट रेस्ट. जो चार्जेस मोशन में होते हैं उसको, उस ब्रांच को बोला जाता है इलेक्ट्रोडायनामिक्स. when the charges are at rest, we are finding out the electric shock here at the charges were at rest. This branch is called as, क्या बोलते हैं इस ब्रांच को? इस ब्रांच को बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. फाइन. सो वहां पे तो सिर्फ इलेक्ट्रोडायनामिक्स था सर, बट यू आर सेइंग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज आल्सो देयर. हाँ, वहां पे बुक में नहीं है या वहां पे लिखा नहीं गया. ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दिस इज द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. वो किसका ब्रांच है? इलेक्ट्रिसिटी का ब्रांच है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का स्टडी करते हैं. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किसकी स्टडी करते हैं हम लोग? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल नहीं करती. एंड इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो कंटेनिंग इलेक्ट्रोडायनामिक्स, जिसमें हम स्टडी किसके बारे में करते हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी. किसके बारे में? करंट इलेक्ट्रिसिटी. सो इसको हम क्या कहते हैं? द सेकेंड टर्म फॉर करंट इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी. हम इसको क्या बोलते हैं? डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी. क्या मेरी बात आपको क्लियरली समझ में आ रही है बच्चों? सो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोडायनामिक्स. एंड व्हेन वी आर स्टडीइंग अबाउट इलेक्ट्रोडायनामिक्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो इसको हम फिजिक्स कहते हैं. या these two things you are going to study, or completely electricity you are going to study into class 12. तो particularly static electricity we are learning into chapter 1 and chapter 2 of class 12. जो फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, वहां पे पढ़ाई करते हो. एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, यू आर गोइंग टू स्टडी दिस वन, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. एंड द थर्ड चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी, वहां पे आप डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी को स्टडी करते हो. बट इसके जो ये आते हैं ना, क्या बोलते हो, डेरिवेटिव्स आते हैं ना, थ्रू आउट फ्रॉम 4th चैप्टर टू 8th चैप्टर यू आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिसिटी. इसके जो डेरिवेटिव्स आते हैं ना, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रेडी होना, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से इलेक्ट्रिसिटी रेडी होना, एंड देन वेयर वी आर गोइंग टू सी द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म. तो ऐसे बहुत सारे चीजें वी आर गोइंग टू स्टडी फ्रॉम 4th चैप्टर टू 8th चैप्टर. एंड इसके और एक्सट्रीम सब स्ट्रक्चर डेरिवेटिव्स जो है, यू आर गोइंग टू सी फ्रॉम 9th चैप्टर टू 14th चैप्टर. ठीक है, तो इतना है. दिस इज ऑल अबाउट. ओके, या नाउ वी आर गोइंग टू मूव टू द नेक्स्ट पेज. तो आपने समझ लिया कि इलेक्ट्रोडायनामिक्स क्या था. वी डिड दैट. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज ऑल अबाउट थर्मोडायनामिक्स. क्या हमने डेफिनेशन देखा इलेक्ट्रोडायनामिक्स का बच्चों? Have we gone through the electrodynamics definition? Okay, it is the branch of physics that deals with the systematic study of किसके साथ?
इलेक्ट्रिक चार्जेस और इलेक्ट्रॉन्स इन मोशन, ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बोलते हैं। एंड व्हेन वी वेर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो ये भी क्या है, यू आर गोइंग टू रिपीट द सेम थिंग। कौन सा वाला रिपीटेशन करने वाले हो आप लोग? सी हियर, it is the branch of physics that deals with the systematic study of, ठीक है, of, ये वाला टर्म यूज करना है, इलेक्ट्रिक चार्जेस, जो कि पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज नहीं, पॉजिटिव चार्ज नहीं लेते हैं, दोनों ले लेते हैं। इलेक्ट्रिक चार्जेस आर इन रेस्ट, है ना। सो दिस स्टडी इज कॉल्ड एज क्या, electrostatics. You have to repeat the same definition from, it is a branch of physics that deals with the systematic study of electric charges are in rest, है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। नाउ थर्मोडायनामिक्स, डायनामिक्स तो पता चल गया सर, बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट मोशन, है ना सर। तो बच्चों अगर ये मोशन है तो फिर थर्मो क्या है, थर्मो है आपका, व्हाट इज थर्मो, ये क्या है। सो दिस इज ऑल अबाउट हीट ट्रांसफर, है ना। गर्मी ज्यादा कम, थर्मो किसको कहते हैं, थर्मो इज नथिंग बट हीट, आइदर इट इज इन ग्रेट ऑर्डर और इट इज इन लेस ऑर्डर, ठीक है। सो फ्रॉम वन सिस्टम फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम व्हेन द हीट इज फ्लोइंग, तो जब हीट फ्लो हो रहा है तो इसको बोला जाएगा वन सिस्टम, है ना, इसको बोला जाएगा अनदर सिस्टम। तो इसकी स्टडी को क्या बोला जाएगा, थर्मोडायनामिक्स, है ना। बिकॉज ये जो एरो मार्क दिखा रहे हैं, दिस इज नथिंग बट हीट फ्लो, ठीक। सो दिस इज नथिंग बट द होल स्टडी ऑफ द सिस्टम, टू बॉडी सिस्टम, जहां पे हीट फ्लो हो रहा है, इसको कहते हैं थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। तो इसका हम लोग कैसे बनाएंगे डेफिनेशन बच्चों, वी आर गोइंग टू मेक द डेफिनेशन ऑफ द thermodynamics is, it is the branch of physics that deals with the systematic study, that deals with the systematic study of heat from heat and its flow from one system to another system। क्या मेरी बात क्लियरली समझ में आई बच्चों, व्हाट इज ऑल अबाउट थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स क्या क्लियरली पता चला आपको। सो दिस इज ओवर, ये भी हो गया, ये भी हो गया, है ना। कैन आई गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट पेज पे चले जाए, यस, ओके, चलो नेक्स्ट पेज पे आ गए हम लोग। नाउ अकॉस्टिक्स, अकॉस्टिक्स क्या होता है सर, माय डियर बच्चों, इट इज द ब्रांच, हाँ सर ये तो पता है, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स बोलोगे आप, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स that deals with the study, that deals with the study of what, study of sound and its interaction with the surfaces
surfaces of any structure. For example, structure माने like buildings, है ना, माउंटेन्स, ट्रीज, चलो जो भी है एंड एक्स्ट्रा, है ना. सो दिस इज कॉल्ड एज अकॉस्टिक्स. तो सर अकॉस्टिक्स बेसिकली होता क्या है सर, टेल मी. बच्चों आई एम एक्सप्लेनिंग अबाउट साउंड, है ना. साउंड के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं. तो साउंड क्या होता है, साउंड में होता है आपका, एक तो होता है सोर्स, ओके, सोर्स. एंडर वन इज लिसनर कह लो या ऑब्जर्वर कह लो, ठीक है ना. सो व्हेन दिस साउंड इज ट्रैवलिंग, सो क्या चीजें स्टडी करते हो आप लोग. वन, द फ्रीक्वेंसी, है ना. एंडर वन इज इंटेंसिटी, ठीक है. सो बस इतना ही सर. वेवलेंथ, है ना. देन एम्पलीट्यूड, फिर बाद में डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ द एनी ऑब्जेक्ट कैन बी लोकेटेड विद द हेल्प ऑफ साउंड, है ना, ये चीज. एंड द स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ऑफ द व्हाट, ऑफ द सरफेसेस ऑफ द वॉल्स. तो जो भी बिल्डिंग का वॉल होता है उसके सरफेसेस में कितना स्ट्रेंथ है, कितने साल ये स्ट्रक्चर खड़ा रह सकता है, इट कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ व्हाट, विद द हेल्प ऑफ साउंड. ठीक है, साउंड का बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों. सो ये सारी चीजें की जा सकती हैं. यू कैन लोकेट द डिस्टेंस, आप डिस्टेंस को लोकेट कर सकते हो, स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल को लोकेट कर सकते हो कितना है. ये सारी चीजें साउंड से होती हैं. एंड आफ्टर दैट व्हेन इट विल गेट हिट, कम बैक, तो एक और चीज भी आप नोटिस कर सकते हो इससे, दैट इज इको. तो बहुत सारी चीजें हैं, वी कैन स्टडी into this branch acoustics में. Basically we used to know the properties of sound into this branch, है ना. तो ये बहुत ही सिंपल है बच्चों, you should know this, right? क्या मेरी बात क्लियरली समझ में आई बच्चों आपको? अकॉस्टिक्स क्या क्लियरली समझ में आई? कैन आई प्रोसीड, आगे बढ़ सकता हूं? गिव मी योर यस, पट से. या अंडरस्टूड सर, ओके. परिजन, वैष्णवी मठ, प्रतीक्षा, रक्षिता कांबले, अंडरस्टूड, शी सेड ओके. पट से यार, बहुत स्लो हो आप लोग, बिल्कुल बंटी के साबन की तरह. या थैंक यू. नाउ दिस इज ऑल ओवर. यहां तक क्या ओवर हो गया, अकॉस्टिक्स तक ओवर हो गया. नाउ वी आर गोइंग टू सी द ऑप्टिक्स. ऑप्टिक्स क्या है, ठीक है. सो दिस इज ऑल्सो स्कोप ऑफ फिजिक्स, है ना. ओके, ऑप्टिक्स क्या है बच्चों? इट इज द ब्रांच, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, it is a branch of physics. I think time is over. Shall I complete this? क्या मैं complete कर सकता हूँ optics? If you say yes, I will go ahead. वरना मैं यहीं पे stop कर दूंगा. फट से, जल्दी से. Yeah, it is a branch of physics that deals with the systematic study, systematic study of light and its interaction with the surfaces of different materials to have various phenomena.
फिनोमिनन, चलो इसको फिनोमिनाज लिख देते हैं, फिनोमिना, ठीक है। चलो, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ लाइट, है ना, and its interaction with the surface of different materials to have various phenomena, है ना। तो बच्चों, whenever light comes out of the source, ये आपके बल्ब से लाइट आया और प्लेन सरफेस, जो आपका प्लेन सरफेस है, ठीक है, प्लेन सरफेस पे हिट करा, फ्रॉम हियर इट इज बाउंसिंग बैक टू द सेम मीडियम, है ना। तो इसको आप लोग क्या बोलते हो, व्हाट यू यूज्ड टू से फॉर दिस इज रिफ्लेक्शन, है ना, इसको रिफ्लेक्शन बोलते हो। एंड व्हेन द लाइट इज, वेट, व्हेन द लाइट इज, जब यहां से किसी दूसरे मीडियम में, से फॉर एग्जांपल दिस सरफेस इज ट्रांसपेरेंट, तो किसी दूसरे मीडियम में लाइट एंटर करता है, ओके। एक्चुअली लाइट हैज टू गो स्ट्रेट अवे, कैसे जाना था लाइट को, स्ट्रेट अवे जाना था, है ना, ऐसे जाना था, स्ट्रेट जाना था, बट इट इज नॉट मूविंग स्ट्रेट, तो ऐसे स्ट्रेट नहीं जा रहा है, इट हैज जस्ट बेंट फ्रॉम द स्ट्रेट पाथ, है ना, स्ट्रेट पाथ से बेंट हो गया है। सो दिस इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन, क्योंकि दिस हैज एंटर्ड इनटू द सरफेस, ये वाले सरफेस के अंदर एंटर होके दूसरे मीडियम में शिफ्ट कर रहा है, दिस इज फर्स्ट मीडियम एंड दिस इज सेकंड मीडियम, so this is called as refraction, okay. This is another type of phenomena, and say for example some amount of light is absorbed here, that is called as absorption phenomena, isko kya kehte hain, absorption phenomena. And after getting absorbed, after some time it will enter, okay, it will enter like this, sab taraf blurly. So this splitting of the light into not disciplined way, undisciplined way is called as scattering, ठीक है, it may be inside or it may be outside, ठीक है, इसको scattering कहते हैं इस phenomena को। but if it split the light into particular format, तो particular format में मतलब 7 color split करते हैं इससे, so that phenomena is called as dispersion, इसको बोलते हैं dispersion। now say for example the light is placed itself onto the surface, अगर यहाँ पे आके सिर्फ यहीं पे बैठ गया, ठीक है, कुछ अमाउंट यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है ऑफ द लाइट, दिस इज कॉल्ड एज एड्सॉर्प्शन ऑफ द लाइट, ठीक है, ये बहुत ज्यादा स्टडी में नहीं आता है, ओके, एड्सॉर्प्शन। एंड स्कैटरिंग से क्या होता है, रामन स्कैटरिंग आता है, ठीक है। एंड ऑल्सो लाइट विल बी ट्रीटेड एज पार्टिकल नेचर, ठीक है, पार्टिकल नेचर, ये तो वेव नेचर था इसीलिए ये सारी चीजें हुई, पार्टिकल नेचर के वक्त you will get the phenomena like photoelectric effect, this is also a kind of phenomena where the particle is get converted into wave format, ठीक है ना, मतलब लाइट से आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हो, तो वेव से आप पार्टिकल्स प्रोड्यूस करते हो, तो दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। विद दिस कॉम्पटन इफेक्ट इज आल्सो देयर, यहाँ पे भी आपको पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट देखने को मिलता है, सो दिस इज आल्सो अ काइंड ऑफ फिनोमिना व्हिच इज कनेक्टेड विद द ऑप्टिक्स, ओके। तो आपने क्या क्या देखा यहाँ पे, यू सॉ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, एड्सॉर्प्शन, डिस्पर्शन, स्कैटरिंग, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, एब्जॉर्प्शन, इतने सारे फिनोमिना देखे, कितने, 4 + 4 8। with these another 3 phenomena are there, एक आपका मिलता है interference, where you will get the either means after combining of two light waves, after falling, after superposing light one on another, you will get either maximum intensity or minimum intensity, तो उस phenomena को interference कहते हैं। and the bending of light, if it takes place at the corners or edges, and you will find the ऑब्जेक्ट्स इन द डार्क पोर्शन, मतलब जब अंधेरा होता है ना, से फॉर एग्जांपल इन द इवनिंग लाइट इज देयर, से फॉर एग्जांपल इट इज अराउंड 6:30, तो एकदम से इलेक्ट्रिसिटी चला जाता है, तो इट विल बी डार्कनेस इन योर रूम, बट स्टिल यू आर मैनेजिंग टू सी द ऑब्जेक्ट्स, इट इज ड्यू टू डायफ्रैक्शन। तो
when the light ray enters into the geometrical shadow region due to which the things will be visible, तो उस phenomena को हम diffraction कहते हैं. And the polarization, due to this phenomena you will reduce the intensity of light. ठीक है? So we saw around 11 phenomena into the optics. क्या मेरी बात आपको क्लियरली समझ में आई बच्चों? Okay, Vaishnavi Mat, please take the attendance quick. Vaishnavi Mat and Pratiksha. Rakshita Kamble, please take the attendance. Fine. Take screenshot and send it to me. So you will be having next class. Bye bye, my dear kids. Take care till tomorrow. Okay.